السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق سینٹر دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کو مزید وسعت دیتے ہوئے عمر فاروق سینٹر نے اپنے ادارے میں ایک لائبریری قائم کی۔ اس لائبریری کے افتتاح کے لیے ہمارے علاقے کی ایک بہت ہی معزز شخصیت جناب محمد نواز خالد عربی صاحب، سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن کو مدعو کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی جس میں تلاوت، نعت اور اس کے بعد عمر فاروق سینٹر کے بارے میں بریف کیا گیا مہمان خصوصی کو۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد عمر فاروق سینٹر کی جانب سے شجر کاری مہم میں پودا لگا کر اپنا حصہ بھی ڈالا۔ عمر فاروق سینٹر مہمان خصوصی جناب محمد نواز خالد عربی صاحب، سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی لمحات میں سے عمر فاروق سینٹر کے لیے ٹائم نکالا۔ صدق اللہ العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نفس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ کروں۔ اگر کوئی مجھے کسی کھیل تماشے پہ بلاتا تو اس کا بالکل کچھ مطلب اور ہوتا۔ جب میں نے یہ سنا کہ یہاں پہ ایک لائبریری کا افتتاح ہو رہا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے دلی طور پر کتنی خوشی ہوئی۔ گویا جہاں پہ کتابوں کا ذخیرہ کیے جانا مقصد ٹھہر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں مطالعہ کی بیسز فراہم کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے مستقبل میں نئی منازل کا انتخاب کرنا ہے اور ان تک سفر کرنا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے مشاغل کتابوں کے علاوہ ہیں انہیں ایک مشغلے کے طور پہ کتاب ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں اگر آپ سے سوال کرتا ہوں خواتین و حضرات سے کہ دنیا میں سب سے کون سی چیز سب سے زیادہ وزنی ہے، ہر ایک کے ذہن میں کسی کے پہاڑ آئے گا، کسی کے ذہن میں کوئی چیز آئے گی،
میرے نزدیک دنیا کی سب سے وزنی چیز کتاب ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی، مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے، وہ کہا تھا کہ جس چیز کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، یہ ناتواں اٹھا گیا ہے۔ وہ کیا تھی؟ کتاب تھی۔ انبیاء کو کیا ملتا رہا؟ کتاب ملتی رہی، اور اس کتاب کا وزن انبیاء نے اٹھایا۔ جن نے ان کے ساتھ مل کے وہ وزن اٹھایا، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو چمچی چلاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سر پہ سیمنٹ گارے کی تگار اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کندھوں پہ، کمر پہ بوریاں اٹھاتے ہیں؟ کتنے ہیں جو سارا دن مشقت کرتے ہیں؟ کوئی راستے میں بیٹھا جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کسی کا خط بنا رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے۔ ان میں سے ایمانداری سے بتائیے، ان کے والدین نے کسی نے یہ خواب دیکھا ہوگا کہ ان کے بچے یہ کام کریں؟ چاہے وہ حجام تھا، اس نے بھی یہ خواب نہیں دیکھا کہ میرے بچے حجامت کریں گے۔ بھلے وہ موچی تھا، اس نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ میرا بچہ بھی اسی طرح چٹائی بچھا کے لوگوں کے جوتے پالش کرے گا۔ ہر ایک نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ہمارے بچے مستقبل میں بہت بلند مقامات پر پہنچیں گے، مگر ان بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے ضروری کیا چیز تھی؟ ایک وزن اٹھانا تھا۔ وہ کتاب کا وزن تھا۔ وہ کتاب کا وزن نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے تگار اٹھا لیا، انہوں نے 2 من کس کی بوری کمر پہ اٹھا لی، انہوں نے سارا دن مٹی پھاندنا چمچی پہ قبول کر لیا، کتاب نہیں اٹھائی۔ اور جو کتاب اٹھاتا ہے، کتاب اس کے مرتبات کو اٹھاتی ہے، کتاب اس کو اس طرح اٹھاتی ہے، اس مقام پہ لے جاتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں۔ میں نے اگر کتاب نہ اٹھائی ہوتی تو میں یہاں پہ نہ بیٹھا۔ یاد رکھیے، جو کتاب سے وفا کرتا ہے، کتاب پوری وفا کرتی ہے۔ منازل کے تعین میں آپ ڈاکٹر بنتا ہے تو کتاب کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ انجینئر بنتا ہے تو کتاب کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ اچھے اخلاق کا مالک ہے تو کتاب کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ ایک اعلیٰ عالم ہے تو کتاب کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ اور جس نے بھی کتاب سے محبت کی ہے تو اس نے عزت پائی ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پہ وہ کتاب لا کے رکھی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ اب آپ کا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑے کو پانی پر لایا جا سکتا ہے، پلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کے پاس کتابیں رکھی جا رہی ہیں، وقت آپ سے نکالنا ہے۔ بدبختی ہے ہماری، بدقسمتی ہے اس دور کی کہ کتاب کو چھوڑ کے ہم اس کے اوپر آ گئے۔ باپ بات کر رہا ہے، میں باپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں۔ ماں بات کر رہی ہے، میری توجہ نہیں ہے، میں اس کو کر رہا ہوں۔ میری بات یاد رکھیے، وہ بچے جو اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے کہتے ہیں ابا اماں بھائی اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے میرے پڑھائی کا کام ہوتا ہے، وہ جھوٹ کو 99% ان کا نقصان ہوتا ہے، 1% فائدہ ہوتا ہے۔ جو فائدہ کتاب سے ہوتا ہے، یہ فائدہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ اس وقت جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر میٹرک کا سلیبس ہے، اس کی کتابیں ہیں، آپ صرف وہی جو کچھ کتابیں ہیں وہی پڑھیے، دیکھیے ٹاپ آپ ہی کریں۔ کتاب کو چھوڑ کر اس کو پکڑنے والے نے میں نے نہیں دیکھا آج تک ٹاپ کیا ہو، آج تک پوزیشن لی ہو۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے خواتین و حضرات کہ آپ کتاب سے محبت کیجیے، یہاں پہ جو کتابیں موجود ہیں ان سے استفادہ کیجیے۔ اس کے بعد جو کتابیں نہیں ہیں آپ سمجھتے ہونی چاہیے، وہ کتابیں انہیں لکھ کے دیجیے، یہ آپ کو فراہم کریں گے۔ کیوں فراہم کریں گے؟ کیونکہ مظاہر صاحب نے جو مجھے بات بتائی، جس کا دوست یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کچھ لے کے خوش ہوتے ہیں، کچھ دے کے خوش ہوتے ہیں۔ جو دے کے خوش ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی خوشی کسی کو نہیں مل سکتی۔ لینے والا وقتی طور پہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے یہ انعام مل گیا، مجھے یہ فلاں کی۔ دینے والے کی خوشی ابدی ہوتی ہے، اس کا اور دینے کو دل کرتا ہے، مگر وہ لینے والے آپ کا نہیں۔ جو دینے والا دینے کو تیار ہے، اگر آپ کتابیں پڑھتے جائیں گے اور کتابیں آتی جائیں گی تو آپ کا وہ گاؤں جس کا تعارف بالکل ایک مختلف نوعیت کا ہے۔ آپ لوگ سارے خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ مجھے یاد ہے 88 کی بات ہے، میرا MA کا ایگزام تھا، آخری پیپر دے کے میں اور بھائی جان کے
कुली गजनफर तारक हम का आखिरी पेपर था, लेके आ रहे थे तो मोटरसाइकिल जो है रास्ते में खराब हो गई। अब रात का उस वक्त इतना आबादी भी नहीं थी और ये चिकरी वाला में वो दुकान बंद हो चुकी थी, जैसे हम मोटरसाइकिल ठीक करवाना, घर से एक बंदा बुलवाया गया, उसने उसको ठीक किया। तो उसने आपसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है? हमने कहा पैंसरा से बुआना की तरफ। फौरन उसके वो लखों वाले गांव से गुजर के जाना है? जी बिल्कुल, उस गांव से गुजर के जाना। आपको इसमें डर नहीं लगेगा? हमने कहा हम उनसे वाकिफ, हमारा ये रास्ता है। कहने का मकसद ये है कि वो गांव जो जिस वजह से खौफ की अलामत थी, आप वो इल्म की अलामत बनना चाहिए। और जिसने इसको इल्म की अलामत बनाने के लिए ये काविश की है, मेरी और आप सबकी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके हर काम में बरकत पैदा फरमाए, और वो जो सोच रखता है या सारे दोस्त जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सोच रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी उस सोच को कामयाबी के अंदर ट्रांसलेट करे और आपको इससे इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की मोहलत बख्शे और तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे, ये जो ऊपर पैंसरा बाना रोड के ऊपर एक गाँव है चाकारबी, वहाँ से इनका ताल्लुक है। ये आपको बताने का मकसद इस वजह से ये है कि आपके ज़हन में ये भी चीज़ जाए कि जो अगर ये वहाँ उस गांव से उठ के तो इस मकाम तक यहाँ पहुँच सकते हैं, तो आप लोग भी इंशाल्लाह जो है अगर अपनी मेहनत करते हैं, जिस तरह उन्होंने फरमाया है कि किताब का बोझ अगर आप लोग उठा लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप इनसे भी ज़्यादा आगे जो है ना वो मकाम तक जा सकते हैं। सर, आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके सेक्रेटरी हैं वहाँ पर, और इंशाल्लाह जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है उनके नीचे सर के सिग्नेचर होते हैं, जो फाइनल रिकमेंडेशन होती है उनके ऊपर सर के सिग्नेचर होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जो आप लोग बैठे हैं इनमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम जो है ना उस लेटर पर आएँ जिनके ऊपर सर के सिग्नेचर होते हैं। और अभी छोटा सा जो है ना वो आपके लिए एक मौका है कि आपके ज़हन में अगर जो सवालात हैं कोई सर से पूछने के बारे में, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा महकमों के सरबराह के तौर पे भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा तालीमी भी उनका मुख्तलिफ तालीमी इदारों के साथ भी सर का ताल्लुक़ है, खुद पढ़ाते भी रहे हैं, पढ़ते तो फिर डेफिनेटली रहे हैं। सर ने अभी लेटेस्ट एक किताब जो है ना वो जेंडर स्टडीज़ पे छापी है CSS वालों के लिए, उनके जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी। तो इसके इस तारुफ के साथ अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवालात हैं तो वो मैं थोड़ा सा टाइम है सर से, हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन 2-4 सवालात अगर आप लोगों के ज़हन में हैं तो वो उसको वो आप पूछ लें। पहले ख़वातीन में से किसी के ज़हन में कोई सवाल है? ये सवाल पूछने वाला बड़ा महसूस करता है, ये जुर्रत का काम होता है। मुझे याद है कि हम एक होटल में आली लेन में कराची में थे, एक यूनिवर्सिटी अपना ओरिएंटेशन के लिए उसने दावत दी कि अखबार में अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी, हम उसमें मौजूद थे। तो जैसे ही मैं सवाल करने लगता मेरा दोस्त पकड़ लिया, बोलना नहीं है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो सवाल बड़ी जुर्रत का काम होता है, लेकिन सारी विज़डम सवाल है, ठीक है। तो आप जो भी सवाल आप करना चाहें वो ज़रूर कीजिए। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये किताब के हवाले से जो मैंने बातें की, देखिए मैंने मैट्रिक तक रेगुलर पढ़ा है, मैट्रिक तक रेगुलर पढ़ा है। FA में मैं फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में FA में मैं फेल हो गया। जिस दिन मैं फेल हुआ था उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं फेल ना होता तो याद रहे, उस फेल होने ने मेरे अंदर की कायनात बदल के रख दी। मैंने कहा मैं फेल हो गया हूं, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और उसके बाद जब मैं कंपटीशन के एग्जाम में आया तो मुझे साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन किया कि आपके डॉक्यूमेंट से ये लगता है कि आपकी जिंदगी मेहनत और कामयाबी से इबारत है, तो इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा मैडम मैं एक दफा FA में फेल हुआ था, अगर मैं FA में फेल ना होता तो ये कामयाबियों की दास्तां आपके सामने कागजों की सूरत में, सर्टिफिकेट्स की सूरत में ना पड़ी। फेल होने के बाद इंटरमीडिएट में जिस साल मैंने एग्जाम दिया था कराची बोर्ड से 11 लोगों की फर्स्ट डिवीजन थी, मैं चौथे नंबर से था। वो जो फेल होते पूरे बोर्ड में प्राइवेट कैंडिडेट में से 11 लोगों की फर्स्ट। BA के इम्तिहान में मैंने 554 नंबर लिए,
मैं अगेन प्राइवेट कैंडिडेट्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकंड हुआ पंजाबी में। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि इस सब्जेक्ट में एमए करना चाहिए, मुझे दोस्तों ने कहा पंजाबी में करें, अगेन मैं सेकंड था 540 के कुछ उसके मार्क्स से। फिर मैंने एग्जाम के अंदर, ये याद रखिए चैलेंजेस को कहते हैं, वही दोस्त चौधरी गजनफर तारड़ और मैं इकट्ठे आखिरी पेपर दे के निकल रहे हैं, तो भाईजान के एक और क्लास फेलो में, उनका नाम नहीं लेता, वो एमए इंग्लिश का एग्जाम दे रहे थे। उनसे मैंने गुजरते हुए पूछा, हमारा पंजाबी का था, तो मैंने उनसे पूछा कि चौधरी साहब सुनाइए आपका पेपर कैसे हुआ। तो जैसे बड़ा एक तफाकुर में बात करता है ना, तो पहले ही सेकंड डिवीजन बनी हुई है इंग्लिश की, बस 33 मार्क्स चाहिए, और वो दौर था जब सेकंड डिवीजन एमए इंग्लिश में कहलाना बहुत बड़ी बात होती थी। 2-4 लोग मैक्सिमम 5% सेकंड डिवीजन लेते थे, बाकी सारे थर्ड डिवीजन होते। उसकी इतनी बात करना, जैसे चंद कदम हम आगे हुए, मैंने कहा चौधरी गजनफर अगले साल मैंने इसी जगह पे इंग्लिश का इम्तिहान दिया। ये यकदम आपको क्या हो गया? आज तक इम्तिहान देने तक तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा अगर ये एमए अंग्रेजी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अगले साल मैंने एमए अंग्रेजी किया, पंजाबी 3 साल पढ़ी, अंग्रेजी 1 साल पढ़ी, दोनों का लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया। पंजाबी में जब मैं गया तो उसमें कोई एज डिफरेंस आ गया 1 दिन का, वो अभी इंग्लिश के पेपर में टाइम था, मैंने जाके वो एज रिलैक्स करवाई और मैं इंग्लिश का लेक्चर हो गया। 3 साल इंग्लिश की लेक्चरशिप के बाद मैंने फिर ये कंपटीशन का एग्जाम दिया, पीएमएस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसे सर ने बताया। तो कहने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई अगर किसी स्टेज पे फेल हो जाता है और उस अपनी फेलियर से सबक नहीं हासिल करता, वो फेलियर उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती, तो वो फेल्ड है, फेल्ड लाइफ, वो लाइफ है। और अगर उस फेलियर को वो जीना बना ले तो वो जो आराम से कामयाब होते आते हैं उनसे आगे निकल जाता है। लेक्चर, ये मेरा सारा प्राइवेट करियर मैंने आपको बताया, लेक्चरशिप में गोल्ड मेडलिस्ट मेरिट में मेरे से नीचे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां जहां मैंने पढ़ाया है मैंने ये साबित किया है कि मुझसे अच्छा टीचर कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है, अगेन मैं रिपीट बात को कर रहा हूँ कि मैंने उस किताब से मोहब्बत की, और आज मतलब मैं एक सिपाही से लेटर के बाद फेल हुआ तो मैं एयरफोर्स में चला गया। 15 साल मैंने अपनी बुनियादी जवानी के वहां पे एयरफोर्स में गुजारे, और उसके साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी, नौकरी भी की है, पढ़ाई छोड़ी है नहीं छोड़ी, और पोजीशन ली है, और सिपाही से सेक्रेटरी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा। इसलिए मेरी आपसे ये दरखास्त है कि बेटा आप आज अगर किताब से वफा करोगे, देखो कहाँ कहाँ वक्त ज़ाय किया, उसकी रेपिटेशन ना हो, वो दोबारा ज़ाय ना हो। जो आपकी नाकामी का बायस बना है, क्या आप उसी नाकामी को लेकर चलते जाएंगे? जो वक्त का साथ देता है वक्त उसका साथ देता है, जो वक्त को ज़ाय करता है तो आपकी जुबान में वक्त खपानी दे बट्टे वार शुक्ला वो कोई नहीं ढूंढ सकता। खपानी जानते हैं ना, जब आप मकई की राखी बैठते हैं तो खपानी में वो पत्थर या ढेला डालते हैं, जब घुमा के फेंकते हैं कितनी दूर जा गिरता है। जो जितना वक्त ज़ाया करता है वक्त उसी खपानी में डाल के उसको फेंक रहा होता है। जो कोई क्वेश्चन आप करना चाहें? जी बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपीएससी के दूसरे एग्जाम में जो हम ये मॉडल पेपर से इस्तेफादा हासिल करते हैं, तो दूसरे एग्जाम जो पीएमएस है, सीएसएस है, उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव कोर्स को फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस चीज़ को क्या सर ये इस पॉलिसी को मतलब कि सेम ही किया जा सकता है? इसमें बेटा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कैंडिडेट है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट और अपनी हद तक सोच रहा होता है, मैंने पूरे पंजाब के बारे में सोचना, ठीक है। देखिए बेटा, हमने देखना होता है कि एग्जाम किस नेचर का है। अब पहले ये होता था कि जो लेक्चरशिप का एग्जाम था वो डिस्क्रिप्टिव था, हमने 5-5 क्वेश्चन किए थे उसके बाद। अब इस बार मैंने बात की चेयरमैन साहब से कि इसको डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, उन्होंने कहा फिर आप रिजल्ट नहीं दे सकते जितनी कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ गई, ठीक है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप लेते हैं तो आप जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। 4,75,900 लोगों ने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है साल, 4,75,900। सीटें कितनी है? 2,451।
अगर इन 4,75,900 लोगों के पेपर्स हम चेक करवाना शुरू करेंगे, कितना ऐसा लगेगा? ये बेटा इसलिए हर पोस्ट को देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 सीटें हैं, मिसाल के तौर पे 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो कोई जरूरत नहीं है उनका रिटन टेस्ट लेने की। रिटन टेस्ट का मकसद क्या होता है? स्क्रीनिंग करना, ठीक है, कि लोग जो एलिजिबल हैं, थोड़े लोग हमें इंटरव्यू के लिए चाहिए जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो जो उस प्रोसेस से निकल गए, सफाई हो गई, जो बाकी बच गया। तो ना तो हर एक का रिटर्न लिया जा सकता है, ना हर एक का एमसीक्यू लिया जा सकता है, ना हर एक का डिस्क्रिप्टिव किया जा सकता है। याद रखिए, यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन से मैं आप सबको बताऊं, जितने भी पीपीएससी के एडवर्टीजमेंट्स आए हैं, आप हर एक में अप्लाई करें। फायदा क्या होगा? जब आप 3-4 टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं, हो ही नहीं सकता इसके बाद आप क्लियर। आप 3 टेस्ट में अपीयर हों, खुदा न खास्ता आप रह गए, मैं गारंटी देता हूँ चौथे में आप पास हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन तो वही है ना, दिन गिरा के वही आ रहे हैं, तो 50% वही आने हैं जो 3 पेपर्स में आपने किए हैं, 50% की आपको और तैयारी करना पड़ जानी है। एक इस वक्त 22वें ग्रेड का आदमी है, उससे मेरी मुलाकात हुई, तो ये एग्जाम के उसने कहा मैं 10 रिटन टेस्ट मैंने पास किए, तो जब मैं सीएसएस के लिए इंटरव्यू में बैठा तो तमाम मेंबर्स कहे तू फिर आ गया, दूसरा कहे तू फिर आ गया, तो वो एक दूसरे कहे तू भी जानता है जी, उसने मेरे पास भी 2 पास किए हैं, 3 मेरे पास किए हैं, तो चीज क्या है तू फिर आ गया। उसने कहा सर मैं आज के लिए क्लियर करता रहा, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, क्यों? मैंने सीएसएस करना था, रास्ते के इम्तिहान मैंने इसलिए लिए अपनी तैयारी के लिए। तो आप हर टेस्ट में अपनी तैयारी करें, जब आप 3-4 टेस्ट पास कर लेंगे, आप ईएमएस कर सकेंगे, सीएसएस कर सकेंगे। जी थैंक यू बेटा। ये बेटा आपको बात करना चाहिए जी। बेटा मैं मेरा नाम पूरा नाम है मोहम्मद नवाज खालिद आरबी, ARBI से, जैसे RBD का यूट्यूब चैनल। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पे 5 वीडियोस मैंने रखी हैं इस एरिया के लिए, आपका टाइम, आपका पैसा बचाने के लिए। आपको एक लाहौर की किसी एकेडमी में सेमिनार होगा, यहाँ से आप अपना खर्चा करेंगे, हैसल करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, पूरी बात भी आपको समझ नहीं आएगी, फिर उसी का प्रश्न वहाँ पे वापस आ जाएंगे। उन 5 वीडियोस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नाम उनका CSS सेमिनार है, CSS सेमिनार 1, 2, 3, 4, 5। जो पहली 2 वीडियोस हैं ये बताती हैं कहाँ से, ये पूरी 5 वीडियो शुरू कहाँ से होती हैं, जब आपके जहन में आता है कि मैंने नौकरी का इम्तिहान देना। ये बात आपके जब जहन में आ रही है, इस प्रोसेस से शुरू करके इंटरव्यू रूम से निकल के इस तमाम टाइम स्पैन को, इस तमाम एक्टिविटीज को वो कवर करती है 5 वीडियो। पहली 2 वीडियो रिटर्न के बारे में है, पहली 3 रिटर्न के बारे में है, और अगली आखिरी 2 जो हैं वो इंटरव्यू के बारे में। आपके ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन का जवाब उन पहली 2 वीडियोस में मौजूद है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। कहने को वो CSS है, लेकिन हर, क्योंकि PPSC का हर एग्जाम कम्पिटिटिव है, तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम को वो कवर करते हैं। ठीक, आप लोग इस तरह करें, पहले वो देख लें, फिर जो क्वेश्चंस बने वो बेशक मदार साहब से शेयर कर लीजिएगा, मैं उनके जवाब आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूँ। थैंक यू जी। देखिए, जो सीट्स का होता है ये हमने खुद से नहीं देनी होती, सीट्स होती है डिपार्टमेंट की नीड है, ये भी बल्कि सबके लिए, कि सीटें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन खुद से अनाउंस नहीं करता। 40 महकमे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, जिसको जिस कैटेगरी के ऑफिसर या ऑफिशियल की जरूरत है वो हमें भेजता है कि हमें 50 हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन ये चाहिए, उनकी एज ये चाहिए, उनका एक्सपीरियंस इतना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर, जो सच्चा उन्होंने हमें बना के दिया है, उससे कदम ये बाहर नहीं निकल सकते। उसके मुताबिक हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, उसके मुताबिक हमने एग्जाम देना, ठीक है।
तो जब भी सीटें आएंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भेजी है, हमें इसका पता नहीं होता कि आ रही नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं भेजी। जी वालेकुम। सर, आपके जो सोशल मीडिया पर वीडियो समझ में काफ़ी खाता से लगा है, लेकिन ये ऑडिटिंग के बारे में काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हमारा रेटिंग क्लियर हो जाता है जी बेटा, तो वो सर आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए है, कोई प्रिपरेशन के लिए कोई आप अकेडमी में कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? बेटा मैं आपको बताऊँ, ओके। देखें मैं बहुत सारे ये जब से मैं कमीशन में आया हूँ ना, मैंने अकेडमीज में पढ़ाना छोड़ दिया। बहुत सारी अकेडमीज में मैंने लेक्चर्स दिए, मैं उनके जो मॉक इंटरव्यूज हैं उनका हिस्सा रहा हूँ। मॉक इंटरव्यू के दौरान होता ये था कि जो पता चलता था ना भावना से है, उसको मैं वहीं पे हूँ, क्योंकि मुझे देखते थे मेंबर्स के, अभी इसको जब इंट्रोडक्शन हो गया ना ये चेक देगा ही देगा, तो मैं उसको चेक देता था, पूरे मेरे ऑफिस आ रहे थे, उसको 2-3 घंटे में अलग से जो इंटरव्यू होता है वो करके उसको दिखाता था। एक ही बैच में माशाल्लाह वो 3 हमारे चलकर एक ही बैच, वो तीनों मेरे पास से मॉक इंटरव्यू से होके गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक ही बैच में वो तीनों टीम मैच कर। तो आप रिटर्न कर ले, देखा मैं हाजिर हूँ, लेकिन वो 2 इंटरव्यू वाली वीडियोस देखने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं इंशाल्लाह आपको। जी ठीक है। आपके बहुत सारी किताबें जो बुक्स हैं ना, वो कंप्यूटर आपको वो अवेलेबल है, वो यहाँ से लोगों को उसकी कापियाँ दें, वो मतलब किसी भी अपनी ये बुक्स अलग हो। मेरे पास वो 50 के करीब इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पे जो भी लेना चाहे, लेकिन तो मैं उसको वो देता हूँ एक वक्त में एक है, ताकि पढ़े करना वो आपको फायदा भी हो पड़ती है। माशाल्लाह ज़बरदस्ती इंशाल्लाह हम भी हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। उमर फ़रूक सेंटर तहे दिल से ममनून और मशकूर है जनाब मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद निवाज़ खालिद आरबी साहब, सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से उमर फ़रूक सेंटर के लिए टाइम निकाला। आप उमर फ़रूक सेंटर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है वो विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।